x to the base 8 log of x to the base 4 log of x to the base 12, 2 equals to 11, then x equals to what? This is our question. Log of x to the base 8 log of x to the base 4 log of x to the base 2 equals to 11. Then what is the value of x is our question. See question, x to the base 8. So here log of x to the base 8 log of x to the base 4 log of x to the base 2 equals to 11. Then what is x? It was our question. Very simple. See here we have x to the base 8 and x to the base 4 and x to the base 2. See here, observe that x is common in all these. We are finding the log of x in each case. We are finding log of x in each case, but the bases are different. Though bases are different, these bases are what? 8, 4, 2. And these bases 8, 4, 2 have some common thing. All these bases 8, 4 and 2 have some common things. These all bases 8, 4, 2 are powers of 2. Keep in mind 8, 4, 2 are powers of 2. Here what is common? X is common, log x, log x, log x, but their base are different. Though base is different, what is common in different is very important thing. Find always the common in the different. Common in different will give you the solution of the problem. Common in difference. Common in difference. What is common in difference? It will give you the solution of the problem. That what is the common in all these different things? That is, these all are powers of 2. 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 2, and 2 raised to 1. 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. So when we solve the problem, keep in mind all these things will be converted into the powers of 2. Ruko. X to the base 8, x to the base 4, x to the base 2. That log of x, log of x, log of x, log of 2. So we use the change of phase theorem. It will be log of x to the base 2 upon log of 8 to the base 2. बराबर है. Log of x to the base 2 upon log of 4 to the base 2. Log of x to the base 2 equals to 11. 4 to the base 2. Now what are these calculation? 4 to the base 2. What is the value of log of 4 to the base 2? It is due to the change of base. A change of base. Yes, as it is. The value as it is, 11 as it is. Log x to the base 2, log of x to the base 2, log of x to the base 2, but log x to the base 8 is converted log of 8 to the base 2. Log of x to the base 4 is converted into the division of these two. Now what is value of log of 8 to the base 2 for all other students? 8 is a cube of 2. So the step will be log of x to the base 2 upon. It is 2 cubes. So I am writing directly 3 log of 2 to the base 2. Because in the next step it will become 1 plus, what is it? Log of x to the base 2 upon log of 4 to the base 2. What is 4 to the base 2? The value of 4 to the base 4 is what? 2 square. So 2 log 2 to the base 2. 2 log 2 to the base 2 plus your quantity log of x to the base 2 equals to 11. Same, no change in the quantity. See here again, those who joined recently, log of x to the base 8 log of x to the base 4 plus log of x to the base 2 equals to 11 was our question. Plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 2 equals to 11 was our question. Now in all 8 is a base, 4 is a base and 2 is a base in all the terms. And we have to consider one point that all are quantities of log x, but their
bases are different. What is different? 842 bases are different. Find the common thing in the bases. 842 में क्या common है? All are the powers of 2. So you have the number 2, and that number 2 is used in the next step. How we use? Change of base, log of x to the base 2 upon log of 8 to the base 2. See here, how the idea comes in mind. आइडिया कैसे आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए हमारी सोच वैसी होनी चाहिए. So here log of 8 to the base 4, log of x to the base 2 upon log of 4 to the base 2 plus log of x to the base 2 equals to 11. Now in all these, log of x to the base 2, log of x to the base 2, log of x to the base 2, log of 8 to the base 2, log of 4 to the base 2. Log of 8 to the base 2. 8 मतलब 2 cube. So it will be log of x to the base 2 upon 2 cube मतलब 3 log of 2 to the base 2 plus log of x to the base 2 upon log of 2 square मतलब 2 log 2 to the base 2 plus log of x to the base 2 equals to 11. अब हम यहाँ तक आए थे. Now log of 2 to the base 2 is 1. Log of 2 to the base 2 is 1. So it will be log of x to the base 2 upon 3, log of x to the base 2 upon 2, log of x to the base 2 equals to 11. So continue in the, it will be so log of x to the base 2 upon log of 2 to the base 2 is 1, so 3 plus log of x to the base 2 upon 2 into log of 2 to the base 2 is 1, so 2 plus log of x to the base 2 equals to 11. Log of x to the base 2 equals to 11. Now we will solve it. Now the next step. Log of x to the base 2 is taken common. Log of x to the base 2 common. So it will be 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1 equals to 11. Now this calculation is very important. It is a product of log of x plus 2. So what is 1 upon 3 plus 1 by 2 plus 1? Log of x to the base 2 into, all are with the denominator 3, 2 and 1. Nothing is there means 1 is denominator. LCM is 6. What should be multiplied? 3 to get 6, 2. So numerator is 2. Numerator is 3 and numerator is 6, will be 11. Next. So we have the step log of x to the base 2 into 2 plus 3, 5 plus 6, 11 upon 6 equals to 11. 11 will be cancelled from both the sides. So we have log of x to the base 2 equals to 6, transposition, and all of you will have definition 2 raised to 6 will be x, and so the value of x is what? 64. You are right. This was our question. Now we have the next question. बोलो, बोलिए, बोलो. हेलो सर, आपने log 2 x to the base 2 को क्यों नहीं मींस अपॉन में लिया, उसको वैसे ही क्यों रहने दिया? किधर वो सर log x to the base 2, नहीं, हाँ, उसको आपने क्यों नहीं मींस अपॉन के फॉर्म में लिया? मुझे ये स्टेप से आगे बोल रहे क्या? हाँ सर, वो log x to the base 2, log of x to the base 2, log of x to the base 2 है कि नहीं? इसको अपॉन के फॉर्म में क्यों नहीं लिया? हाँ, log x अपॉन log 2 ना? हाँ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. ये सब सेम टर्म्स है ना. 1 2 3 टर्म सेम है कि नहीं? तो ये तीनों सेम टर्म हम कॉमन लेंगे, उनकी एक टर्म बन जाएगी ना, 3 जगह होने की वजह से एक जगह हो जाएगी टर्म. इसलिए यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, उठा दिया, इधर लिख दिया. फिर आगे क्या रहता है? नंबर रहता है. हमको एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है. ये जो लॉग के अलग अलग क्वांटिटी थे ना, लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ x टू द बेस 8, लॉग ऑफ x टू द बेस 4 और लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ये सभी को एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करो तो आपका आंसर आएगा. अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है.
बहुत सही क्वेश्चन है, आपको समझे या नहीं समझे, बट मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि हमारे क्वेश्चन में ये अलग अलग ऐसे क्वांटिटीज थे, x टू द बेस 8, x टू द बेस 2, x टू द बेस 2। तो अगर ये ऐसे क्वांटिटी है तो इनको हमको एक लॉगरिथम के क्वांटिटी में लाना है। तो इसलिए हमने हमने क्या किया, 8 log x x x तो है, बट बेस हम सेम बनाएंगे। log x टू द कौन सा बेस बनाएंगे, जो बेस 8 4 2 से कुछ रिलेटेड हो, और वो है 2, इसलिए हमने इसका बनाया log of x to the base 2, log of x to the base 2, log of x to the base 2, इट वाज ऑलरेडी। बट जब हम बेस चेंज करते तो बेस चेंज थ्योरम हमें यूज करना पड़ता है। तो log of x to the base 8 was converted into log of x to the base 2 upon log of 8 to the base 2। हाँ, अब बोलो अभी क्वेश्चन क्या। नहीं सर, क्लियर हो गया। ये ओके ओके, कोई बात नहीं है, फिर से अगर आया डाउट तो पूछ सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन भी ध्यान ध्यान में रखो। हाँ बोलो, बोलिए। यस। सर सर हम जब भी एडिशन रहता है तो सब तब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं लॉग में, तो सर इधर एडिशन क्यों किया सर हमने? हाँ करते हैं, बराबर है, सही बात है। हम जब एडिशन होता है ना तो मल्टीप्लिकेशन ही करते ना, बराबर है, तो एकदम सही है। सर तो दो इधर क्वेश्चन है, वन सही बाई क्वेश्चन आए। ये वन अब मैं बाई थ्री आपको प्लस वन बताता हूँ, बाई ये टू क्वेश्चन पहले देखो, ये स्टेप पहले देखो, log of x to the base 2 upon 3, log of x to the base 2 upon 2, log of x to the base 2, ठीक है नहीं। तो अभी हमें कॉमन दिख रहा है कि नहीं ये टर्म log of x to the base 2, तो इसको पहले कॉमन लो ना, बेटर वे, मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा ना उसमें। क्वेश्चन बिंदास पूछिए, कोई बात नहीं है, हम ट्राई करेंगे, इससे हमें समझ में आता आप कौन सी दिशा में सोच रहे हैं, क्वेश्चन आपका यही बताता है। बराबर है, सही क्वेश्चन है कि जब लॉग आता है तो हम सभी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट उसमें कैसे रहता है, वो क्वांटिटी कैसे रहती है, देखो चलो मैं आपको बताता हूँ। जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है क्वांटिटी, तो लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, उसमें बेस सेम होना चाहिए। एक कंडीशन रहती है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या डिवीजन के लिए, है कि नहीं, बराबर है। आपको लग रहा है इधर बेस तो सेम आया, फिर सर ने मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया, बहुत सही क्वेश्चन। बट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो क्वांटिटी सेपरेट चाहिए, उसके आगे पीछे कोई नहीं चाहिए। log of 5 टू द बेस 2 तो log of 5 टू द बेस 2, इधर ना कोई मल्टीप्लायर है ना कोई डिवाइड करने वाला नंबर। इसमें ये डिवाइड करने वाला नंबर है ना 3 2, और ये कुछ नहीं तो 1। ये 3 और 2 को क्या करेंगे आप लोग, क्या करोगे? ओके, कोई बात नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आया, ये 6 कैसे आया, बहुत सही क्वेश्चन है। ये जो है ना, हमने log ऑफ x टू द बेस 2 को कॉमन लिया, यहाँ से ये फ्रैक्शन में गए ना, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो ये टर्म को कॉमन लिया और हम इसको ऐड करने जा रहे हैं, 1/3 1/2 और 1 ये टर्म रह गए। अब जब डिनोमिनेटर 3 और 2 है, तो 3 और 2 का एक कॉमन मल्टीपल, हमारा पहला लेक्चर एलसीएम, तो वो होता है 6, इसलिए 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, 6 1 जार 6, ये 6 बना है, यहाँ 6 बना है, यहाँ 6 बना है। जब ये 6 बन जाता है एलसीएम, तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना, इधर भी 2, इधर 3, इधर भी 3, इधर भी 6, इधर भी 6, ऐसे ये 2 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन 6। फिर आगे का प्रोसेस आपको मालूम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। I have log of bc to the base a, y equals to log of ca to the base b,
z equals to log of ab to the base c. X is log of bc to the base a, y is log of ca to the base b, z is log of ab to the base c. Then 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus y, 1 upon 1 plus z equals to what? This is our question. 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus y, 1 upon 1 plus z equals to what? ये वैल्यू कितनी आएगी? What will be the value of 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus y, and 1 upon 1 plus z? फिर आपको जब 1 आता है लॉग में, तो लॉग में जो 1 होता है उसको बहुत संभाल कर आपको यूज करना पड़ता है। 1 अगर किसी क्वांटिटी में लॉगरिथम में ऐड है तो 1 को आप रिप्लेस करेंगे 1 इज अ लॉग ऑफ p टू द बेस p, मतलब जिसका लॉग आप ले रहे हैं उसी का बेस लीजिए। ये हर एक जगह 1 किसी लॉगरिथम ऑफ सम क्वांटिटी और वही बेस, लॉगरिथम ऑफ सम क्वांटिटी और वही बेस, लॉग ऑफ सम क्वांटिटी और वही बेस, और आपको वो एडजस्टमेंट करनी है आपके एक गिवन क्वांटिटी के साथ। चलो हम आपको बताते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है। 1 प्लस एक्स हम पहले फाइंड करेंगे। 1 प्लस एक्स मैं आपको पहले फाइंड करके दिखाता हूँ। 1 1 रहेगा, एक्स है हमारा लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए। देखिए इसमें ये क्वांटिटी लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए, अगर हम ये 1 को देखिए, अगर हम 1 को लॉग ऑफ ए टू द बेस ए करें, तो अभी जो क्वेश्चन आया था कि हम मल्टीप्लाई नहीं करते, तो मल्टीप्लाई करने का चांस आएगा। लॉग ऑफ ए टू द बेस प्लस लॉग ऑफ बी सी टू द बेस। देखो जो जरूरत है वो बी सी है, अभी हमें ये चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर लॉग ऑफ ए टू द बेस से रिप्लेस करो 1 की जगह। अब हमारा बेस सेम है, तो अब हम मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आजू बाजू किसी भी जगह कोई कोएफिशिएंट नहीं, कोई डिवाइड नहीं करता, तो लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए। सो 1 प्लस एक्स हुआ लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए। सिमिलरली मैं आपको सिमिलरली बोलता हूँ, 1 प्लस वाई भी होगा लॉग ऑफ ए बी सी, बट बेस कितना होगा कोई बताएगा? 1 प्लस वाई में लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस क्या होगा? बराबर है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। यस यस, आप लोग ही आंसर देते हो बार बार। यस, तो सिमिलरली यस यस यस, लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस। सिमिलरली मेरा क्वेश्चन है, तो 1 प्लस जेड में क्या होगा? लॉग ऑफ ए बी सी टू बेस व्हाट? 1 प्लस जेड में, यस यस यस, 1 प्लस जेड में बराबर है। तो ये जो क्वांटिटी हम इसको लेके जाएंगे, बराबर है। अब तो ये हमारा हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हुआ है लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए। 1 प्लस एक्स हुआ है 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बी टू द बेस ए बी सी टू द बेस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन log of ABC to the base A, 1 upon log of ABC to the base B, 1 upon log of ABC to the base C। अब उसके आगे आपको करना है, बहुत सिंपल है। क्या होगा ये? रेसिप्रोकल यूज कीजिए। चेंज ऑफ बेस में हम रेसिप्रोकल लॉ यूज करते थे, उसको अगर उल्टा लिखना है तो बेस इसकी जगह जाएगा, ये इसकी जगह आएगा। तो ये स्टेप क्या होगी? लॉग ऑफ ए टू द बेस ए बी सी, log of b to the base abc, log of c to the base abc, तीनों का एडिशन होगा। तो लेट मी राइट ऑल द स्टेप्स। इट विल बी log of a to the base abc, देखो हाँ 1 आता है, log of a b to the base abc, log of c to the base abc। अब ए सी ए बी ए और ए बी ए है और बेस ए बी सी, ये हो जाएगा log of ए बी सी टू द बेस ए बी सी। जानबूझ के नहीं लिखा है हमने कंप्लीट। So it will be 1। आगे का पार्ट आपको करना है। आंसर यस, log of ABC to the base ABC, that is 1।
यस यस यस, आगे का पार्ट आप लोग करोगे, मुझे पक्का, यस यस कॉन्फिडेंस है। आपने लिया मतलब बाकी लोग भी करेंगे। अदर लोगों को किसी को कोई डाउट वन आंसर आने में? यस, देखिए सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से नहीं होता, आपको अगर डाउट है तो आपका डाउट हमारे सामने आना चाहिए, रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता है। बहुत सही क्वेश्चन था। चेंज ऑफ बेस का एक एप्लीकेशन इधर आया, और वन की वैल्यू लॉग ऑफ पी टू द बेस पी यानी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एक्स होती है। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस प्रॉब्लम्स वेर डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ बेस थ्योरम। ये सब प्रॉब्लम चेंज ऑफ बेस से रिलेटेड थे। चेंज ऑफ बेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्हिच वेर डिपेंडिंग ऑन चेंज ऑफ बेस। अब हमारा सिर्फ रह जाएगा लॉग का कैलकुलेशन ऑफ लॉगरिथम और एक बेसिक रूल को कैसे यूज करना है। सो हियर वी हैव अगेन अनदर क्वेश्चन। थोड़े से अलग क्वेश्चन लेते हैं और आज शायद लॉग को हम एंड करेंगे। देखिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी। बहुत सिंपल है, लॉग ऑफ बी स्क्वायर अपॉन सी ए, log of c square upon ab equals to what? ले लेंगे, कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा सा समझाएंगे 10 प्रॉब्लम में। log of a square upon bc, log of b square upon ca, log of c square upon ab equals to what? एडिशन है सब जगह। नहीं, आंसर कुछ गलत आ रहा है, log 1 आएगा। log 1 मतलब what? 1 बट लॉगरिथम को भूल रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, आंसर you are near to the answer। यस, दैट्स इट। बट उसकी वैल्यू क्या होती है? व्हाट विल बी द आंसर? यू आर नियर टू द आंसर, आपका आंसर सही है बट उसकी एक वैल्यू होती है। अब बराबर है बट कैलकुलेशन में ये वैल्यू बराबर आती है। चलो हम बताते हैं आपको, बराबर है आपका। तो ये हो जाएगा, यस यस वेरी गुड समीन, ये हो जाएगा, यस समीन, ए स्क्वायर प्रोडक्ट करेंगे अब, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए बी, एडिशन, एडिशन और लॉगरिथम का जो एडिशन है वो हो जाएगा प्रोडक्ट और उसका लॉग। इट विल बी लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कैंसिल हो गए, लॉग ऑफ 1, एंड लॉग ऑफ 1 इज व्हाट? 0। log of 1 is 0। log of 1 is 0। Next question, find the value of, बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। if log of a
to the base 2 log of a to the base 2 upon 4 log of b to the base 2 upon 6 log of c to the base 2 upon 3k and a square b square c square is 1. Find k. Three k, 3 times k. Log of a to the base 2 upon 4. Log of b to the base 2 upon 6. ट्राई करो, कोई बात नहीं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज 1 है. मैंने भी नहीं सॉल्व किया है, समझो. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्रोडक्ट है 1. फोर अंदाजे कर कुछ किया है. log a to the base 2 upon 4 log of b to the base 2 upon 6 log of c to the base 2 upon 3k. Then what is value of k? सब लोगों के आंसर चाहिए. चला, अभी आंसर बदल गया. कुछ लोगों का आंसर अभी हमें के फाइंड करना है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज 1. अभी एक फ्रैक्शन आंसर भी आया है. log of a to the base 2 upon 4 log of b to the base 2 upon 6 log of c to the base 2 upon 3k. ट्राई करके बताइए. और 2 मिनट देता हूँ. 2 मिनट. परफेक्ट आंसर चाहिए. चलो हम बताते हैं आपको. थोड़ा सा प्रयास करेंगे. रुको. log of a to the base 2 upon 4 log of b to the base upon 2 somewhat you are नजदीक. c to the base 2 के फाइंड कर. a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 है नहीं क्या? तो ध्यान रखो, a स्क्वायर b स्क्वायर अगर 1 है, if the value of a square into b square into c square 1 है, कुछ नहीं. log a to the base 2 upon 4 log of b to the base 2 upon 6 log of c to the base 2 upon 3. हम क्या करेंगे, इसे कोई नए नंबर से डिनोट करेंगे p. एक कांस्टेंट है, समझो. तीनों रेशियो
तो थेरमोन इक्वल रेशो क्या कहता है? थेरमोन इक्वल रेशो, थेरमोन इक्वल रेशो के बजाय मैं आपको क्या बताता हूँ, थेरमोन इक्वल रेशो भी बता सकते हम, log of a to the base 2 plus log of b to the base 2 plus log of c to the base 2 upon 4 plus 6 plus 3k equals to p, theorem on equal ratio. न्यूमरेटर ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी ऐड, और हर एक की वैल्यू ये ईच रेशियो के बराबर होती है। थोड़ा हम इसको लेके जाएंगे क्योंकि हमें एबीसी चाहिए ना, तो ये मिल जाएगा न्यूमरेटर log of abc to the base 2 अपॉन ये जो 4 plus 6 इक्वल प्लस 3k है ना, वो आगे जाएंगे p इंटू 10 plus 3k log of abc to the base 2 equals to p into 10 plus 3k log of abc to the base 2 equals to p into 10 plus 3k। अब हम थोड़ा सा आगे जाना है प्रॉब्लम को लेकर, ध्यान दो, हमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, इधर स्क्वायर चाहिए कि नहीं, तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 log of abc to the base 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई तो राइट साइड से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2p इंटू 10 plus 3k। ओके, अब ये जो लेफ्ट साइड है उसको थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, तो ये स्क्वायर कब होगा, जब इसके पहले 2 होगा, ये लॉजिक है। तो 2 ऊपर गया तो ये जाएगा log ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बेस 2, log ऑफ abc ब्रैकेट स्क्वायर 2 मतलब log ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर टू द बेस 2, और RHS होगा 2p इंटू 10 प्लस 3k, ट्वाइस p इंटू 10 प्लस 3k, ट्वाइस p इंटू 10 plus 3k will be the RHS। अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मतलब 1, तो log of 1 to the base 2, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मतलब 1, मतलब log of 1 to the base 2, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर is 1 मतलब log of 1 to the base 2, तो LHS होगा log of 1 to the base 2 will be 2p into 10 plus 3k, 2p into 10 plus 3k, log of 1 to the base 2 क्या होता है, 0, 0 equals to yes 2p into 10 plus 3k, 2p into 10 plus 3k। सो देखो इससे कुछ वैल्यू मिलेगी, so what is the value of k, what must be the value of k, p तो 0 नहीं रहेगा और ये क्वांटिटी 0 है, तो आपको डिसाइड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। अगर गलत गलत हुआ तो कैलकुलेशन गलत है, if wrong then calculation is wrong, if anything wrong then the calculation will be wrong, nothing is wrong। और कुछ सोच सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन को, फिर से देखिए